Yes, sir, visible now. Okay. So now we are here in, I informed you कि in your syllabus there are two homogeneous and heterogeneous, two types of catalysis, and one special I had given you yesterday, that is autocatalysis. Autocatalysis, hydrolysis of ester I have given yesterday, a special one that you will write by yourself. Autocatalysis I informed you कि that type of catalysis in which no any external catalyst is used, but any one product of the reaction itself act as catalyst. For example, hydrolysis of ester, in which I informed you carboxylic acid is act as catalyst. And now remember, after this we need to discuss just the mechanism of heterogeneous catalysis, because around us, out of all the catalysis, 70% catalysis is heterogeneous, 70-80% catalysis is heterogeneous. Very few examples of homogeneous catalysis is around us. That's why we will not discuss the mechanism of homogeneous. Mechanism of homogeneous is in chapter 4, that is chemical kinetics. The last part is there. There homogeneous is present, there we will discuss the homogeneous, but here heterogeneous catalysis only we will discuss. In your syllabus only heterogeneous, that's why we are going to discuss heterogeneous catalysis. So first question, which theory is applicable or followed by heterogeneous catalysis or mechanism of heterogeneous catalysis? हेट्रोजीनस कैटेलिसिस को समझाने के लिए कौन सी थियरी एप्लीकेबल होती है या फॉलोड होती है? द थियरी इज एडजॉर्प्शन थियरी. वो थियरी कौन सी है? एडजॉर्प्शन थियरी. एडजॉर्प्शन थियरी. रिमेंबर दिस, रिमेंबर द नेम. नाउ what is adsorption theory? So remember, according to adsorption theory, adsorption theory के according reactant must be in gaseous state or in liquid state, that is in solution. reactant जो होंगे वो किस स्टेट में होंगे? गैसियस स्टेट में होंगे या लिक्विड यानी सॉल्यूशन के फॉर्म में होंगे. एंड द कैटलिस्ट मस्ट बी सॉलिड. पहला इंफॉर्मेशन कि अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थियरी द कैटलिस्ट मस्ट बी सॉलिड इन ऑल हेट्रोजीनस कैटलिसिस. इस सारे हेट्रोजीनस कैटलिसिस में आप देख सकते हैं कैटलिस्ट इज सॉलिड, कैटलिस्ट सॉलिड है. एंड रिएक्टेंट इज लिक्विड और गैस, रिएक्टेंट इज लिक्विड और गैस. सो अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थियरी, in heterogeneous catalysis catalyst will be always solid, catalyst हमेशा solid रहेगा. and the reactant must be gas or liquid, not solid. reactant जो होगा वो gas होगा या solution होगा. now the heterogeneous catalysis, according to adsorption theory, heterogeneous catalysis completes in following 5 step. बस यही 5 स्टेप आपको लिखना है यहाँ तक, दिस 5 स्टेप. और ये आता है प्रीवियस ईयर, दिस वाज इन प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस कहे या राइट द एडजॉर्प्शन थियरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस कहे, दोनों की मीनिंग एक है. सो व्हाट आर द 5 स्टेप? नाउ सी, diagram is here, it is also from your NCERT book. So in first step में क्या होता है? I had informed you already कि वी आर डिस्कसिंग द सरफेस फिनोमिनॉन. हम सरफेस फिनोमिनॉन डिस्कस कर रहे हैं. सरफेस फिनोमिनॉन पहले डिस्कस हो चुका है, एडजॉर्प्शन. ठीक है. और एडजॉर्प्शन क्यों होता है? आई इन्फॉर्म्ड यू बिकॉज इन सॉलिड there are two types of particles. The inside particles having balanced force because they are surrounded by the other particles of same type, but the particles which are present at the surface, they have unbalanced force, and this unbalanced force cause the attraction. यही unbalanced force क्या करता है? attraction cause करता है. I inform you. So just keep this mind. यही डायग्राम यहाँ बना हुआ है कि इसमें तो केवल 2 ही पार्टिकल की लेयर लिया गया है, तो ये सरफेस वाले पार्टिकल का दिखा रहा है कि दे हैव अनबैलेंस्ड फोर्स एंड दीज अनबैलेंस्ड फोर्स आर कॉज द अट्रैक्शन. एंड दिस ए एंड बी आर रिएक्टेंट. ये ए बी रिएक्टेंट है एंड दिस सॉलिड इज कैटलिस्ट.
विच हैव द फ्री वैलेंसीज, फ्री वैलेंसी जिसको कहा जा रहा है जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपन व्हेन द कैटलिस्ट कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ रिएक्टेंट, देन फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, रिमेंबर सॉल्यूशन चैप्टर, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन मीन्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू टूवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, सो दिस इज सॉलिड सरफेस एंड दीज आर द टू रिएक्टेंट। इसमें ये मूव कर सकता है, इट इज सॉलिड सो दिस विल नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगा क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं है, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है। मूवमेंट केवल रिएक्टेंट पार्टिकल में होगा जो कि लिक्विड होगा या गैस होगा। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट आर हियर, यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बट एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज लेस। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, लेस है। सो दीज रिएक्टेंट पार्टिकल्स विल बी मूव एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के सरफेस की तरफ जाएंगे। कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन। तो सबसे पहले द रिएक्टेंट पार्टिकल विल बी डिफ्यूज एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के सरफेस पे डिफ्यूज होंगे बिकॉज द कंसंट्रेशन चेंज। Here the concentration of reactant is high and at the surface the concentration of reactant is low. So everything is moving from their higher concentration to towards their lower concentration. Now second step, जब वो उसके surface पे पहुंचेंगे then due to this force of attraction of solid, ठीक है, दैट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सरफेस पार्टिकल का, ड्यू टू दिस अट्रैक्शन दे आर अट्रैक्टेड एंड एडजॉर्ब एट द सरफेस ऑफ दैट कैटलिस्ट। वो उस कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। इट इज रिटन एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, ये एडजॉर्ब हो गए। नाउ एज यू नो एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, आप सभी को बता दिया गया है एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। सो ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन एनर्जी इज रिलीज्ड, that energy is taken by these reactant particles, particles को energy चाहिए reaction करने के लिए, so that energy is taken by these particles and these particles becomes energetic, and when they becomes energetic or active they are attract to each other, वो एक दूसरे को attract करेंगे क्योंकि उनके बीच में chemical reaction होना है, so they will be attract to each other because they are becomes active getting the energy, वो energy पा गए हैं, active हो गए हैं, so they will attract to each other and for attraction they will form a bond between them, उन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। so this time they will have the unbalanced condition, क्योंकि इनके बीच में भी बॉन्ड बन गया और इधर भी एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, so they will be in unbalanced condition, means not in stable condition. For getting the stability को पाने के लिए, because this bond, the bond present between the reactant particle के बीच में जो बॉन्ड बना है that is chemical bond, और यहाँ पे जो बना है that is physical bond. So this bond will be weaker and this bond will be slightly stronger. So this bond, adsorption bond, will be broken out and these are now convert into product. देखिए यहाँ क्या लिखा है, सिंबल्स को ध्यान दीजिएगा। Here it is written A plus B, मतलब दोनों रिएक्टेंट अलग अलग लिए हैं, और यहाँ आने के बाद A माइनस बी नहीं लिखा है, इट इज A बॉन्ड B, A और B आपस में मिलके प्रोडक्ट बना लिए, ठीक है। बट दिस प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ये प्रोडक्ट उस कैटलिस्ट के सरफेस पे ही है, ठीक है। एंड जब प्रोडक्ट दैट रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सरफेस पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब फिर से क्या होगा, एक्सचेंज होगा, दीज प्रोडक्ट्स विल रिमूव फ्रॉम द सरफेस एंड रिएक्टेंट पार्टिकल विल अगेन मूव टुवर्ड द सरफेस। अब रिएक्टेंट पार्टिकल, नए रिएक्टेंट पार्टिकल सरफेस की तरफ जाएंगे और जो उस पर प्रोडक्ट बना था,
क्योंकि प्रोडक्ट केवल सरफेस पे है तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का यहाँ ज़्यादा है, दैट विल बी मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, एंड रिएक्टेंट पार्टिकल विल मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन. So new reactant particle will comes and the previous product particle will be moved away. So this process is again diffusion. So in this diffusion and adsorption two are participated. So once again, first step, reactant particles will diffuse at the surface of solid catalyst. Second step, reactant particles are adsorbed at the solid catalyst. Now third step, reactant particles will react to each other at the surface to form product. Fourth step, these products are desorb. यहाँ पे adsorb हुआ, अब यहाँ पे desorb from the surface of catalyst. And fifth step, these products are diffused away from the surface and leave the surface free for the upcoming of another रिएक्टेंट पार्टिकल. अब वो वहाँ से चले जाएंगे ताकि दूसरे रिएक्टेंट पार्टिकल वहाँ पे क्या हो सके, आ सके. सो इसलिए आपको कहा गया था कि कैटलिस्ट प्रोवाइड द सरफेस फॉर रिएक्शन. कैटलिस्ट केवल रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन. दैट्स वाई द प्रोडक्ट इज नॉट चेंज. इसलिए कैटलिस्ट के कारण प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है. एंड कैटलिस्ट इज रिमेन अनचेंज्ड. जितना हमने कैटलिस्ट लिया था उतना कैटलिस्ट वापस बचा रहता है, क्योंकि इसमें से तो कुछ खर्च हुआ ही नहीं. केवल इसने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म दिया. लाइक स्कूल इज प्रोवाइडिंग यू अ प्लेटफॉर्म कि आप वहाँ पे आइए और पढ़िए. ठीक है, पढ़ना आपको है, एग्ज़ाम आपको देना है, रिजल्ट आपका आएगा. जस्ट स्कूल इज प्रोवाइडिंग यू अ प्लेटफॉर्म कि आप आइए. पहले इधर उधर ऑनलाइन इनलाइन ये वो आप पढ़ रहे थे, आपको कुछ सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिल रहा था. स्कूल में आप जाएंगे, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट एंड देयर इज अ टाइम शेड्यूल कि इतने से इतने समय में आपके सिलेबस कंप्लीट होंगे, एग्जाम होगा. दैट सेम वर्क इज डूइंग बाय कैटलिस्ट. कि पहले रिएक्टेंट पार्टिकल आपस में इधर उधर टकराते थे, उनकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती थी. कोई एक पार्टिकल टकराया, दैट इज ड्यू टू कोलिजन द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, वन बिकम्स हायर एनर्जेटिक, अनदर बिकम्स लोअर एनर्जेटिक. फिर वो मूव किया, दूसरे से टकरा गया. बट हियर दैट कोलिजन इज लेस. यहाँ पे कोलिजन कम है, यहाँ पे डायरेक्शनल कोलिजन है. और अगर कैटलिस्ट नहीं रहता है तो दैट इज अनडायरेक्शनल कोलिजन. तो इन अनडायरेक्शनल कोलिजन एनर्जी इज वेस्ट आउट. दैट्स वाई लेस प्रोडक्ट इज फॉर्म. एंड आफ्टर यूजिंग द कैटलिस्ट इट बिकम्स डायरेक्शनल कि इट इज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म कि आप वहाँ पे आइए, गेट द एनर्जी, रिएक्ट, फॉर्म द प्रोडक्ट एंड रिमूव अवे. सो दिस इज डायरेक्शनल, अ शेड्यूल्ड structure. So that's why it enhance the production. So this is about the adsorption theory. First step, remember, पहले reactant diffuse होगा surface पे, adsorb नहीं होगा. पहले diffuse होगा, यहाँ से वहाँ जाएगा, फिर उस पे adsorb होगा due to attraction. फिर after adsorption, क्योंकि आपको पता है adsorption exothermic होता है, they will get the energy and becomes energetic. And after getting the energy, they will form the bond between themselves. Reactant particle will form the bond between themselves, and then after they will convert into product and desorb. Convert हो जाएंगे product में और desorb हो जाएंगे. ये fourth step हुआ. और fifth step, जो product surface पे था, desorb हुए लेकिन अभी surface पे ही हैं. अब जो product surface पे था, that is diffuse away. तो ये चीज़ देखिए, फर्स्ट वन लिखा है डिफ्यूजन, सेकेंड वन एडजॉर्प्शन, थर्ड वन केमिकल रिएक्शन एट द सरफेस बिटवीन द रिएक्टेंट पार्टिकल, फोर्थ वन डीजॉर्प्शन, जो प्रोडक्ट बना वो डीजॉर्ब हुआ, एंड फिफ्थ वन दैट प्रोडक्ट इज डिफ्यूज अवे from the catalyst surface and the surface becomes free for the attack of or attraction of another reactant particle. So this is adsorption theory. Just keep this diagram in your mind. इसमें 4 स्टेप दिया, 5वां स्टेप लास्ट वाला नहीं है. फर्स्ट स्टेप, the reactant particle will be diffused at the surface. Second step, reactant particle will be adsorbed at the surface. Third step, reactant particle will react to each other to form the product. Fourth step, product is desorbed from the surface.
and fifth step, these products are removed away by diffusion. diffusion से reactant particle आएंगे, diffusion से ही product वहाँ से remove होगा. So this is adsorption theory. And again I am saying each and every line, each and every alphabet, each and every word is from your NCERT. आपके NCERT का ही ये सारा है. If you will open your book, आपको ये डायग्राम जहाँ दिखे, इस डायग्राम के एक पेज पीछे आइए and you will get this all information. आपको ये सारा information वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा word to word. ठीक है. So don't think कि NCERT जरूरी नहीं है. Everything is in NCERT. Now एडजॉर्प्शन थियरी के बाद नेक्स्ट वन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, जैसा आपको बता दिया गया है कि एडजॉर्प्शन थियरी के लिए द कैटलिस्ट विल बी सॉलिड. कैटलिस्ट क्या होगा? सॉलिड होगा. सो सॉलिड कैटलिस्ट का कैरेक्टर क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट? तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट. There are two characters given in your NCERT book. One is activity and second is selectivity. This question was previous year in board examination. ये question previous year board examination में था. तो question ये आता है कि why the heterogeneous catalysis are mostly happen with the solid catalyst, or why the catalyst are most of the time solid in physical state. Catalyst क्यों solid होते हैं physical state के basis पे? Why not liquid and gas? Maximum catalysts are solid, liquid are very less and gaseous is nothing is there. Gaseous तो बिल्कुल ही कम है. ठीक है, very few, maybe 0.5% or 1%. So the reason is first, solid catalysts are very active. Solid catalyst क्या होते हैं? बहुत एक्टिव होते हैं. Why? Because आपने देखा कि in solid the particles are tightly packed. There is fixed arrangement, and due to fixed arrangement they have the balanced and unbalanced force. Balanced force is inside the particle, particle which are present inside, and the unbalanced force is the particles present at the surface. And due to these surface particles, they are more active. ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं बिकॉज दे हैव द फ्री वैलेंसी और एक्टिव साइड, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स मोर स्ट्रॉन्गर देन लिक्विड और गैस. गैस में तो सारे पार्टिकल अलग अलग होंगे, तो उतना प्रॉब्लम वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगा. एंड नेक्स्ट लिक्विड की अगर बात करते हैं तो लिक्विड में भी थोड़ा सा इससे कम अरेंजमेंट होता है, थोड़ा सा इससे कम फोर्स होता है, तो द सेटलमेंट कैन बी चेंज. बट इन सॉलिड एवरीथिंग इज फिक्स्ड. दैट्स वाई most of the time the catalyst is solid. This is the first character of solid catalyst. कि solid catalysts are very much active due to their unbalanced force which are applied by their surface particles. And next, selectivity. Solid catalysts are very much selective in nature. Solid catalyst बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव इन नेचर होते हैं बिकॉज दे हैव द अनबैलेंस फोर्स, एंड दैट अनबैलेंस फोर्स फॉर्म द, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बिटवीन द रिएक्टेंट पार्टिकल एंड द कैटलिस्ट पार्टिकल. ये अनबैलेंस फोर्स केमिकल बॉन्ड बनाता है, एंड दैट केमिकल बॉन्ड इज स्पेसिफिक इन नेचर. आपको पता है केमिकल बॉन्ड किसी के बीच भी नहीं बन सकता है, दैट इज स्पेसिफिक इन नेचर. दैट्स वाई सॉलिड कैटलिस्ट आर सेलेक्टिव. सेलेक्टिविटी का रीजन आप यहाँ से देख लीजिए, कंडीशन क्या है. हर रिएक्शन में कैटलिस्ट अलग अलग है, बट द रिएक्टेंट आर सेम. सारे में रिएक्टेंट सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, सारे में. कैटलिस्ट केवल अलग है. निकिल है, कॉपर, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सर है, और कॉपर अकेला है. एंड देन सी द प्रोडक्ट. जब निकिल है तो प्रोडक्ट मीथेन है, वाटर है. जब कॉपर है, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड का मिक्सर है तो मीथेनॉल. और जब केवल कॉपर है तो मीथेनॉल. मीन्स द कैटलिस्ट इज सेलेक्टिंग कि हाउ द अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल विल टेक्स प्लेस टू फॉर्म द प्रोडक्ट. किस तरह से
रिएक्टेंट पार्टिकल आपस में अरेंज होंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे. इट इज डिपेंड ऑन द कैटलिस्ट. सो कैटलिस्ट इज very much selective in nature. That's why for a particular chemical reaction a particular catalyst is used. जैसे आपको कहा गया कि हेबर्स प्रोसेस में Fe यूज करना है तो Fe ही यूज करना है. If we will use any other then the product may be different. So this is the second property. And जो property आया था, जो question आया था, question is not direct a property. Question was there in previous year board examination कि ये रिएक्शन दिया था all three, and question is asking कि which nature of catalyst is shown by these reactions. ये reactions catalyst के किस nature को show कर रहे हैं. Then आपको देखना था कि reactant are same but catalyst are different, so product are different. So this is the सेलेक्टिविटी नेचर ऑफ कैटलिस्ट. ये कैटलिस्ट का सेलेक्टिविटी नेचर है. सो विच नेचर ऑफ कैटलिस्ट इज शोन बाय दीज रिएक्शंस. ठीक है, दैट इज सेलेक्टिविटी नेचर. ये आपको वहाँ लिखना था. वन वर्ड का क्वेश्चन था, वन वर्ड आंसर वाला. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. देयर आर, या मे बी ऐसे कर सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ निकल देन फॉर्म मीथेन, बट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड then it is form methanol. Which nature of catalyst is shown by this? That is selectivity nature of catalyst. So there are, remember the topic is what? This topic is कैरेक्टर ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, ऑफ फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट. सॉलिड कैटलिस्ट का फीचर क्या है या कैरेक्टर क्या है. देन टू फीचर, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी. एक्टिविटी के केस में यू विल एक्सप्लेन दैट सरफेस पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स, एंड इन सेलेक्टिविटी यू विल शो दैट इफ the catalyst will be different or change, then product will be changed, even the reactant are same. Now next, this is a special type of catalyst, and this one is the most important type of catalyst. In your NCERT book 20 questions are there, then out of 25 questions 6 questions are related with this only. आपके एक्सरसाइज में 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हैं. एंड दिस वाज आल्सो इन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन. जस्ट प्रीवियस ईयर आई एम सेइंग, यू कैन सी इन बोर्ड पेपर. सो सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, टॉपिक विल बी सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट और सेफ सेलेक्टिव कैटलिसिस. कैटलिस्ट कहेगा तो सब्सटेंस की बात करेगा, एंड कैटलिसिस कहेगा तो वो प्रोसेस कहेगा. Now what is safe selective catalyst अगर आता है तो आप कहेंगे that catalyst which activity या property is depend upon the pore structure of the catalyst, and these catalysts have स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. रिमेंबर, फिर से मैं बतलाता हूँ, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होता है. तो आप कहेंगे दैट कैटलिस्ट विच हैव स्पेशल टाइप ऑफ हनी बी और कॉम लाइक स्ट्रक्चर. मतलब इनके स्ट्रक्चर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे हनी बी के बी हाइव में पोर्स होते हैं, या आप कॉम में देखें तो उसमें छोटे छोटे जो आपके कॉम के टूथ होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है. तो जस्ट लाइक दैट कि ऐसे ऐसे उनके बीच में स्पेशल पोर्स हों, या जैसे आपका हनी बी का बी हाइव होता है ऐसे पोर्स हों. सो दोज कैटलिस्ट विच हैव स्पेसिफिक पोरस स्ट्रक्चर. पोर वर्ड लिखना जरूरी है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं, स्पेसिफिक porous structure. Remember this, mark this statement, specific porous structure. इसमें सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन है पोर्स का. विदाउट पोर्स अगर क्यों लिखोगे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, सो दैट विल बी एंजाइम कैटालिसिस, वो एंजाइम कैटालिसिस हो जाएगा. सो पोर लिखना जरूरी है, पोर सबसे जरूरी है इसमें, कि दोज कैटलिस्ट विच हैव स्पेसिफिक पोरस स्ट्रक्चर.
लाइक हनी बीहाइव लाइक स्ट्रक्चर और कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। थोड़ी सी यहाँ पे वर्ड मिस प्रिंटिंग है नहीं, आप लिखेंगे हनी बीहाइव लाइक और कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड द एक्टिविटी ऑफ these catalyst is depend on the pore shape and size। इनकी एक्टिविटी उनके पोर के शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है और रिएक्टेंट के शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है। जैसे अगर उनका पोर इतना बड़ा है तो इफ रिएक्टेंट विल बी स्मॉलर देन दिस साइज, अगर रिएक्टेंट इससे छोटे होंगे या रिएक्टेंट की साइज इससे बड़ी होगी, देन दे विल बी नॉट एडजस्ट इन दीज पोर्स एंड दे विल बी नॉट एडजॉर्ब, और वो एडजॉर्ब नहीं होंगे क्योंकि इनका स्ट्रेट सरफेस नहीं है, दे हैव पोरस सरफेस। सो पोरस सरफेस में एडजॉर्ब होने के लिए इसके अंदर फिट होना पड़ेगा। इफ़ दे आर वेरी स्मॉल तो सरफेस के कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे। इफ़ दे आर लार्ज दे विल नॉट इंटर इनसाइड इट। सो फॉर दैट द साइज मस्ट बी इक्वल टू और स्लाइटली लेस देन द पोर साइज। इसलिए जो रिएक्टेंट की साइज होनी चाहिए वो उनके पोर साइज के लगभग बराबर होनी चाहिए। अगर रिएक्टेंट की साइज पोर साइज से बड़ी है या बहुत छोटी है, देन दैट विल बी नॉट कैटालाइज बाय दीज कैटलिस्ट, वो इस कैटलिस्ट से कैटालाइज नहीं होंगे। सो रिमेंबर दिस वंस अगेन। क्वेश्चन पहला है व्हाट आर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होता है? देन यू विल राइट those catalyst which have a specific porous structure like honey beehive like structure और comb like structure, ठीक है। the activity of these catalysts are depend on the shape and size of their pores and shape and size of reactant, ठीक है, reactant and product molecules। now next, if the size, shape and size of reactant particles or product particles is not similar to the shape and size of the pores of catalyst, then that will not undergo catalytic reaction, वो catalytic reaction नहीं करेंगे। ये हो गया catalyst के बारे में। एन एग्जाम्पल इसका है जियोलाइट, दैट यू नो फ्रॉम क्लास 11th, हार्डनेस ऑफ वाटर, सोडियम जियोलाइट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम जियोलाइट यूज फॉर रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। सो सोडियम जियोलाइट इज अ शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, सोडियम जियोलाइट एक शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। तो आपको एग्जांपल लिखना है सोडियम जियोलाइट या केवल जियोलाइट, जो भी आप कहना चाहें, या एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट और इम्यूनोसिलिकेट, इट इज हियर, ठीक है। एंड अगर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, व्हाट इज शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, तो आप कहेंगे दैट कैटालिटिक रिएक्शन विच आर, ठीक है, प्रोसीड बाय द यूज ऑफ शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट, वो कैटालिटिक रिएक्शन जो शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट के द्वारा होता है, दैट आर कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। एक एग्जाम्पल आपके में यहाँ दिया हुआ है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक कर करके दूसरे प्रोडक्ट को फाइंड करना, ये प्रोसेस जो होता है, ऐसा कि आप जानते हो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज नॉट अ सिंगल, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्स 50 to 60 प्रोडक्ट्स। इसी पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपने अगर आप जानते होंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपको पेट्रोल मिलता है, गैसोलीन, इसी से आपको जो आपके ये होते हैं मिट्टी का तेल होता है ये मिलता है, इसी से आपको वैक्स मिलता है, इसी से आपको ग्रीस मिलता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है डैट इज़ कमिंग फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अलग चीज़ है, पेट्रोल अलग चीज़ है। पेट्रोलियम इज रॉ मटेरियल विच कम्स आउट और डग आउट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है, और सी, ठीक है, जो पेट्रोलियम निकलता है उसको फिर रिफाइन किया जाता है, तब हमारा मिलता है पेट्रोल या अदर थिंग्स। सो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में जो हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग होती है, उनसे जो अलग अलग प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, दैट प्रोसेस इज यूज शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, उस प्रोसेस में शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस यूज होता है। या एक एग्जांपल आप दे सकते हैं,
the removal of hardness of water or permanent hardness of water. So एक बार फिर से repeat करते हैं because this is very important. If question will be there, what is shape selective catalyst, then you will say those catalyst which have specific porous structure. Again I am saying porous structure, and they have specific porous structure like honey beehive like structure or comb like structure. And the property of these catalyst is depend on the shape and size of their pores as well as shape and size of their reactant and products. For example, zeolite. Next one is there, what is shape selective catalysis? Those catalytic reaction which are proceed by the use of shape selective catalyst that are called shape selective catalysis. ठीक है, for example, the removal of permanent hardness of water by use of zeolite and the cracking of hydrocarbon in petroleum industries. These two are the example of shape selective catalysis. Now next, अब हम शुरू करने जा रहे हैं कौन सा प्रोसेस? सी हियर, वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज एंजाइम कैटालिसिस. अब हम एंजाइम कैटालिसिस पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, सो एंजाइम कैटालिसिस, आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस, इट विल बी ओवर टुमारो, so I will just give you a small information about this. Enzyme, there are two words, one is enzyme, another is enzyme catalysis. So फिर से enzyme मतलब substance, enzyme catalysis मतलब हो गया process. ठीक है, process. Now another information, enzymes are also called biochemical catalyst और biocatalyst. Remember this, ये क्वेश्चन आता है, why enzymes are called biocatalyst. ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, पहला चीज तो ये है कि एंजाइम्स आर अ कैटलिस्ट. एंजाइम्स क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं. एंजाइम का नाम यू नो फ्रॉम क्लास 9th एंड 10th, या मे बी उसके पहले से आप जानते होंगे. एंड एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी. एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं. आई एम सेइंग लिविंग बॉडी, नॉट एनिमल्स, नॉट ह्यूमंस. ठीक है, इट इज रिटन हियर. तो पहला एग्जांपल हो गया, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड. ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड मतलब नाइट्रोजन के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है विच आर प्रोड्यूस इन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है, दे आर प्रोटीन्स. ये होते क्या हैं? कौन से बायोमॉलिक्यूल होते हैं? प्रोटीन होते हैं. ठीक है, एंड दे आर फॉर्म इन कोलाइडल सोल्यूशन. ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन के फॉर्म में पाए जाते हैं. These enzymes are responsible to increase of rate of biochemical reaction. I am not saying chemical reaction, I am saying biochemical reaction. Biochemical reaction word की meaning हो गई those chemical reaction which are takes place inside the bio, that is living body. हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, व्हाट आर देयर. ठीक है, इन सारे प्रोसेस में हम अलग से कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं. दैट कैटलिस्ट आर, ठीक है, प्रोड्यूस इन आवर लिविंग बॉडी, और उन्हीं कैटलिस्ट को नाम दिया गया है एंजाइम्स. एंजाइम्स. सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन, व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड. फर्स्ट. सेकेंड, विच बायोमॉलिक्यूल आर एंजाइम? दैट इज कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और विटामिन. क्या है? तो एंजाइम्स आर प्रोटीन. थर्ड, in which form enzymes are produced in our living body? That is colloidal solution form. ये हमारे बॉडी में किस फॉर्म में होते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन के फॉर्म में होते हैं. नेक्स्ट, why enzymes are called biocatalyst? एंजाइम को बायोकैटलिस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज enzymes are responsible to increase the rate of biochemical reactions. Means those chemical reaction which are takes place inside the living body. जो लिविंग बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं उनका रेट ये इंक्रीज करता है. बाहर के लिए नहीं, केवल बॉडी के अंदर. बॉडी के अंदर सीक्रेट होता है, बॉडी के अंदर ही रिएक्शन को, रेट को बढ़ाता घटाता है. ठीक है, दैट्स वाई एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट और बायोकेमिकल कैटलिस्ट. इसीलिए एंजाइम को
बायो कैटलिस्ट कहते हैं या बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ न्यूमरस रिएक्शन दैट अकर्स इन द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेस आर कैटलाइज्ड बाय। कैटलाइज्ड वर्ड का मतलब हो गया इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो एक क्वेश्चन हुआ एंजाइम क्या होता है वो आपको बताना है, तो आप कहेंगे एंजाइम्स आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस इन लिविंग बॉडी। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है, विच आर प्रोड्यूस और फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन विथ वाटर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कैटलाइज द, ठीक है, केमिकल रिएक्शन takes place inside the living body. Now second, why enzymes are biocatalyst or biochemical catalyst, then your answer will be there कि enzymes are called biocatalyst or biochemical catalyst because enzymes are maintain the chemical reactions or catalyze the chemical reaction which are takes place in living body, that is biochemical reaction. Because enzymes are catalyze the biochemical reactions only or mainly, that's why enzymes are called biocatalyst. ये तो हो गया एंजाइम की बात और बायोकैटलिस्ट की बात। अब आया सेकेंड टर्म एंजाइम कैटालिसिस और बायोकेमिकल कैटालिसिस। क्या होता है अगर ये पूछे तो इट इज द प्रोसेस, सो द प्रोसेस और द कैटालिटिक रिएक्शन, द कैटालिटिक रिएक्शन विच आर प्रोसीड बाय द यूज ऑफ एंजाइम्स, वो कैटालिटिक रिएक्शन जो एंजाइम्स के थ्रू होता है, या ऐसे कहिए दोज कैटालिटिक रिएक्शन इन विच एंजाइम्स आर एक्ट एज कैटलिस्ट, या वे कैटालिटिक रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स कैटलिस्ट का वर्क करते हैं, दैट कैटालिटिक रिएक्शंस आर कॉल्ड बायोकेमिकल कैटालिसिस। उन्हीं को कहते हैं बायोकेमिकल कैटालिसिस। तो अगर कैटालिसिस पूछेगा तो आप प्रोसेस बताएंगे, एंजाइम पूछेगा या कैटालिस्ट पूछेगा, रिमेंबर द वर्ड लिस्ट मीन